चलिए कंपोजिशन। कंपोजिशन composition of atmosphere. Gases plus dust particles, plus water vapor. Main gases are nitrogen, oxygen 20.9%, argon 0.93%, CO2 carbon dioxide 0.036%, and others. Nitrogen is very less reactive gas, but this is very important for growth. This is very important for growth. Nitrogen participates in amino acids, and amino acids form what? Protein. Oxygen life saving gas. Life saving gas. This is very important in respiration purposes. In water, it is present in dissolved form. In water, it is present in dissolved form. Dissolved oxygen जिसको बोलते हैं in the form of H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जो भी एक्वेटिक जो लाइफ्स हैं, जो जल में रहने वाले हैं, एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्या है इनटेक करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है. ठीक. आर्गन इनर्ट गैस है. आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में, लाइक रॉड वगैरह, जो बल्ब रॉड, इन सब में क्या है, कौन गैस यूज होती है? आर्गन गैस ही. इनमें सब में आर्गन गैस यूज होती है, इंपॉर्टेंट है. तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें इसकी इंपॉर्टेंस होती है और ज्यादा नहीं. कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस. दिस इज ग्रीन हाउस गैस, CO2. ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस. दिस इज ग्रीन हाउस गैस. दिस इज ग्रीन हाउस गैस. ग्रीन हाउस गैस है ये. दिस इज ग्रीन हाउस गैस. ये ग्रीन हाउस गैस है. What do you mean by greenhouse gases? These are responsible for the global warming. Currently, these are responsible for the global warming. ठीक. What are the greenhouse gases? Greenhouse gases क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, वो तो ठीक है. ठीक. Very good. These are important in regulating the temperature of Earth. But when the amount of these gases start increasing in atmosphere, then what happened? Then global warming occurs. It means these are very important to regulate the temperature, but excess amount of greenhouse gases leads to global warming. Excess amount of greenhouse gases leads to global warming. This is one of the very important greenhouse gas, carbon dioxide. It permits incoming solar radiation. But restrict the outgoing radiation. Means terrestrial long wave radiation. देखो सिंपल क्या बोल गए हम. Suppose this is sun. This is what? This is sun. Suppose this is sun. जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है, and suppose this is earth. This is earth and this is sun. The radiation that is coming from the sun is called as insolation. What? Insolation. And it is coming in the form of short wave. It is a form of short wave radiation. Incoming solar radiation, it's called insolation. जो भी सन से एनर्जी आती है वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन. ठीक है. और किस फॉर्म में आती है? शॉर्ट वेव्स में आती है. शॉर्ट वेव्स इन द सेंस, वेवलेंथ जानते हैं? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी जानते हैं? वेवलेंथ पढ़ा है कभी? एक रिलेशन है, n = 1/,
lambda. Lambda is wavelength. Lambda is wavelength. And n is frequency. n is frequency and lambda is wavelength. lambda wavelength, n क्या है? frequency. n क्या है? frequency. और lambda क्या है? wavelength. ठीक. तो n equal to 1 by lambda means there is inverse relation between n and lambda. जब frequency ज्यादा होगी तो lambda क्या होगा? wavelength कम होगी. ठीक है. और ये अगर कम होगी तो ये क्या होगा? ज्यादा. जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फोटोस्फीयर ऑफ द सन. फोटोस्फीयर पढ़ाया था. दैट इज कमिंग फ्रॉम द फोटोस्फीयर ऑफ द सन. तो जो सन से आने वाली, सन का जो आउटर पार्ट है उसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं. क्या कहते हैं? कितना टेम्परेचर होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस. 6000 डिग्री सेल्सियस. तो वहां से जो रेज आती हैं वो आती हैं क्या? वो शॉर्ट वेव्स हैं. इट मीन्स उनकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है? कम होती. इट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी. ज्यादा होगी. ठीक. तो वो क्या है? इजिली आती हैं कहां तक? सरफेस तक आएंगी. लेकिन जो जाने वाले हैं इनके लिए क्या है? जो ये आने वाली हैं इनको आप CO2 जो है या ये भी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनको ये नहीं रिस्ट्रिक्ट करती. बट यहां से जो वापस जाएगा, जो धरातल से वापस जाएगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है. द रेडिएशन that is outgoing, you can say outgoing radiation called as terrestrial long wave radiation. What? terrestrial long wave radiation. जो सरफेस से जाता है उसको क्या बोलेंगे? terrestrial long wave radiation. इसका मतलब उसकी वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी. फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी. ठीक है. और उसको क्या है? उसको that is trapped by the carbon dioxide and many other greenhouse gases in atmosphere. That's why our atmosphere, ठीक है, is what? Is increasing in temperature. ठीक है. Is proceeding towards global warming. तो जो वापस जाने वाली है लॉन्ग वेव रेडिएशन, क्या बोलेंगे उसको? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को ये CO2 और ये सारी चीजें क्या करती हैं? इनको रोकती हैं. क्या करती हैं? मतलब दीज गैसेज आर एक्टिंग लाइक अ ब्लैंकेट. कैसे काम करती हैं? ब्लैंकेट की तरह. जैसे ब्लैंकेट आप करते हैं ना, ओढ़ते हैं, कवर करते हैं अपनी बॉडी को, तो क्या होता है? आपकी हीट प्रिवेंट होती है, बाहर नहीं जा पाती. क्या आपको क्या लगता है कंबल से अलग से हमको गर्मी मिलती है? ऐसा नहीं. हमारी जो हीट है वो प्रिवेंट रहती. ठीक. वैसे ही ये जो वापस जो हीट जाएगी उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर जो गैसेस हम क्या करेंगे? एनवायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट करेंगी. ठीक है. कवर करेंगी. क्लियर है ना? इन चीज़ों को याद रखिए. ठीक है. इन चीज़ों को याद रखिए. चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो ये जो है इसी से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. इसी से धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज. तो ये जो ग्रीन हाउस आप कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हो, इसका मतलब कि इसका एक सफिशिएंट एक अमाउंट, जो एक फिक्स अमाउंट है, दैट इज मच नीडेड. ठीक. बट व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इन देयर क्वांटिटी, जब ये क्वांटिटी इंक्रीज करती है, देन इट इज बैड फॉर आवर एटमॉस्फेयर. ठीक. देन इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. मतलब अगर इसका अमाउंट ज्यादा होने लगे, एक सफिशिएंट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट नेसेसरी है, जरूरी है, लेकिन अगर उससे ज्यादा होने लगेगा तो क्या होने लगेगा? तो हीटिंग होने लगेगी. ओवर हीटिंग. क्या होगा? ओवर हीटिंग मीन्स ग्लोबल वार्मिंग. इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. एंड ग्लोबल वार्मिंग इज करेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? क्लाइमेट चेंज. ग्लोबल वार्मिंग इज द मेन फैक्टर. ठीक है. इज मेन फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज करेंटली. तो अभी जो हो रहा है वो इसी के लिए. तो इसको आपको याद रखना है. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बहुत ही, ठीक है, बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक.